فتح سے بڑھ کر غلبہ، more than conquerors. اور ہم پڑھیں گے رومیوں کے نام پولس کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 37ویں آیت۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کہ یہ آمین؟ جس نے ہم سے محبت کی، کس نے کی؟ جس نے محبت کی، اس کی محبت کی وجہ سے ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔ اصل میں جو اس کا انگلش ترجمہ ہے وہ ہے فاتحے سے بڑھ کے غلبہ۔ اردو میں آیا فتح سے، انگلش میں فتح کرنے والوں سے۔ تو جو لوگ فتح کر کے آتے ہیں، کسی شہر کو فتح کر کے آتے ہیں، کسی ملک کو فتح کر کے آتے ہیں، کوئی جنگ جیت کر آتے ہیں، اس وقت ابھی تو آج کل ہم نے کبھی دیکھا نہیں داؤد کو، نہ جدعون کو دیکھا ہے، نہ برق کو دیکھا ہے، ہم نے کسی سورما کو، یشوا کو نہیں دیکھا، لیکن میرا ایمان ہے جب وہ جنگ جیت کے آتے تھے، جب فتح کر کے آتے تھے، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے تھے، چہروں میں خوشی، مسکراہٹ اور شادمانی کہ ہم نے فتح کر کے آئے ہیں۔ اور خداوند کی جلال کو یہ کہہ رہے تھے، خداوند یہ فتح تو نے کروائی ہے۔ فتح کے بعد دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو فتوحات کرنے والے ہیں، جو جنگ جیت کے آتے ہیں، جو ملک فتح کر کے آتے ہیں، ہم ان سے بڑھ کے ہیں۔ بولے ہالےلویا۔ رومیوں کے 8ویں باب کو بائبل کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ خط پالوس نے لکھا تھا رومیوں کی کلیسیا کو۔ یہاں سے میں رکنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے پیغام سے آگے بڑھنے سے پہلے سنیے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، پالوس نے کس کو لکھا؟ مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ کس کو لکھا؟ کس کو لکھا؟ اچھا آپ کچھ بات بولے بھائی آج رومیوں کی کلیسیا کو یاد رکھیں۔ رومیوں کو نہیں لکھا، روم میں تو بے شمار لوگ رہتے تھے، کلیسیا جو روم کے اندر تھی اس کو خط لکھا تھا۔ تو روم کی کلیسیا کو خط لکھا، ایمانداروں کو لکھا، نجات یافتہ لوگوں کو لکھا، عام روم کے لوگوں کو نہیں لکھا۔ ایسے کرنتھیوں کے نام جو خط ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام سے ہے جو کرنتھس شہر میں تھی۔ تو روم کے شہر میں جو کلیسیا تھی اس کو کہا گیا ہے تمہیں فتح پانے والوں سے زیادہ غلبہ حاصل ہے۔ عام لوگوں کو نہیں کہا گیا۔ ہم دنیا کے لوگوں میں، ہم بشارتی میٹنگ میں، کروسیڈ میں نہیں کہہ سکتے عوام کو کہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے، لیکن جب ایماندار ہو، نجات یافتہ ہو، رسولوں کی خدمت اور ان کے کلام کی بنیاد پر جنہوں نے نجات پائی ہے اور ان سے کلام کریں، تو میں کہوں گا ضرور ہوگا آپ کو فتح کرنے والوں سے بھی زیادہ غلبہ حاصل ہے۔ آپ فتح پانے والوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں، مور دین ہیں۔ بولے ہالےلویا۔ یہ جو 8واں باب ہے جو رومیوں کے نام، میں نے کہا کہ یہ مونٹن ٹاپ آف دا بائبل ہے۔ اس باب میں ایمانداروں کی حفاظت، ایمانداروں کی فتح اور ایمانداروں کے فتح کے ساتھ ساتھ سارے چیلنجز پہ غالب آنے کا ذکر ہے۔ اس باب میں پالوس یقین دلاتا ہے کہ خواہ مشکلیں ہوں، چیلنجز ہوں، دکھ ہو، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، تنگی ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، اس آیت میں لکھا ہے سب حالتوں میں کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، ایماندار جو ہے ان کو فتح کرنے والوں سے زیادہ غلبہ حاصل ہے۔ وہ فتح کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، دکھ ہو یا مصیبت۔ تو یہ کیسے دکھ اور مصیبتوں میں ہم فاتح ہو سکتے ہیں یا فتح سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آیت ہے رومیوں 8واں باب 37 آیت، یہ زبردست اعلان ہے اور ہمیں مسیح کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ اسٹارٹ میں لکھا ہے مگر ان سب کے ہاتھوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی۔ لہٰذا یہ محبت کرنے والے کی بات ہے، جس نے محبت کی ہے ہم سے، اس کی وجہ سے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے۔ ہر طرح
इब्लीस के साथ है, हर तरह की जंग जो शैतान के साथ है, बदरूहों के साथ है और आजमाइशों के साथ है, उन पर हम गालिब आते हैं उसकी वजह से जिसने हमसे मोहब्बत की। और उसका नाम सब इकट्ठे बोले, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है उसका? आवाज दीजिए, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये बात यकीन दिलाता है कि फतह यीशु की तरफ से है। अब सवाल पैदा होता है, ऊपर देखिए आई उन सब हालतों में ये कौन कौन सी हालत है? थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है कि बीमारी, खतरा वगैरह, लेकिन आइए पौलुस के लफ्ज़ों में इसको पढ़ लेते हैं। रोमी 8वां बाब 35वीं आयत क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मसीह की मोहब्बत की वजह से ही तो हम गालिब आते हैं। किस पे? मुसीबत पे, तंगी पे, जुल्म पे, काल पे और नंगापन पे और खतरों पे हम गालिब आते हैं मसीह की मोहब्बत के वसीला से। बोले हालेलुया। कुछ बात हो गई, हालेलुया। लेकिन एक बात बताऊं, ईमानदार जो निजात याफ्ता है, जो कलीसिया है, ये मुबर्रा नहीं है खतरों से। तो फिर किसी को फिर नहीं पैदा है। ईमानदार को नकी पैदा जो खतरा सबसे नहीं खतरे से गुजरते हैं। ईमानदारों पर भी मुसीबत आ सकती है, ईमानदारों पर भी गुर्बत आ सकती है, ईमानदार जो है उन पर भी तंगी आ सकती है, गुर्बत आ सकती है और काल उनके लिए पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। वो इन हालात में से गुजर सकते हैं, लेकिन इन हालात पर गालिब आएंगे उसकी वजह से जिसने हमें फतह से बढ़ के जन्मा दिया है। बोले हालेलुया। तो जो बिलीवर्स हैं, दे आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सफरिंग, वो खतरों से मुबर्रा नहीं है। गलता अक्सर जरूर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत नहीं आएगी। दुख आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है, खतरा आ सकता है, इब्लीस की तरफ से जुल्म और सितम के पहाड़ टूट सकते हैं, अपनों की तरफ से भी जुल्म और सितम के पहाड़ टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, शैतान की तरफ से भी, इंसानों की तरफ से भी। लेकिन ईमानदारों को याद रखना चाहिए कि बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। जब खुदा साथ है, उसकी मोहब्बत साथ है, तो ये सारे हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए। दुनिया का ख्याल ये है कि फतह मिलती है दुखों के बगैर। आम दुनिया का ख्याल फतह मिलती है दुख सहने के बगैर। जी नहीं, ईमानदारों को बताना चाहता हूं, फतह मिलती है दुखों में से गुजरने के बाद। जरा गौर से सुनिए, बात हर तरफ शिकस्त नजर आती है, शिकस्त खुर्दा, परेशान, जिधर जाए जिधर हाथ डाले किसी काम में कामयाबी नहीं है। ऐसा होता है कई दफा, हर तरफ शिकस्त नजर आती है और परेशानी नजर आती है। यदि आप ये समझें कि आपको पैसे चाहिए, आपने खुद दिए हैं, कर्जा लिया है, वापस चाहिए, आपकी जरूरत है, मिलते नहीं है, या कुछ और समझ ले, कोई प्रॉब्लम है, आप परेशानी की हालत में हैं और आपको शिकस्त नजर आ रही है, बीमारी आ जाती है और आप समझते हैं कि शायद ये बीमारी तो बस अब जान लेगी, छोड़ेगी। अंदर ही अंदर घुलते जाते हैं, खौफ होता है बीमारी का, परेशानी का। लेकिन याद रखें, खुदावन हमारी सोच को बदल सकता है। हालेलुया। आज अपनी सोच को उसके सामने रखें, कह खुदा मेरी सोच बदल दे, मेरी सोचों में तू आ जा और मैं तेरी मोहब्बत को याद करूं कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी है। याद रहे, हम सिर्फ जिंदा ही नहीं है, हम सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि फतह वाली जिंदगी से जी रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जोर डालिए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, थैंक यू। बैठिए, हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। पहले ग्रंथियों 15वां बाब पढ़िए।
लिखा है मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। फतह किसकी तरफ से आती है? जंग जिन्ना नहीं लड़दा यहोवा और जंग कभी नहीं हारते। जंग जीतने वाला कौन है? साहिब जंग कौन है? फतह किसकी तरफ से आती है? वो हमारे खुदावंद की तरफ से आती है। कहिए हालेलुया। मैं कह रहा था कि बात शिकस्त नजर आती है, हर कारोबार ही नहीं चलता। बस आप कहते हैं कि जिधर जाओ नाकामी नाकामी, किसी जिन कहते हाथ ही नहीं करता किसी काम से, मतलब कोई क्या कहना चाहिए कि जिधर जाए नाकामी नाकामी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मसीह के वसीला से में फतह वक्त मिलती है, और मैंने हवाला आपके सामने रखा है। खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। अब फतह से भड़कर गलबा जो है, उससे मुराद मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंकरर्स जो है, फातेह जो है, हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे बढ़कर हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कैसे फतह पाएं? कैसे पाएं? कैसे पाएं? हालात हैं, मैं नहीं कहता कि हालात नहीं है, फतह कैसे पाएं? गिdeon जदूर एक आम आदमी था, मदियानियों से डरा हुआ, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे फतह दूंगा, तू बनी इस्राएल को मदियानियों से छुड़ाएगा। उसने कहा मैं कहा मेरी हैसियत का, लेकिन खुदा ने कहा तू करेगा। और मदियानियों की फौज जो है लातादाद थी जो हमला करने वाली थी, लेकिन जदूर सिर्फ 300 लोगों को लेकर निकला मदियानियों को फतह करने के लिए, और खुदा ने उसे फतह बख्शी। अब मेरी बात सुनिए, खुदा ने क्यों हजारों की तादाद को यीशु उसके जदूर के साथ नहीं भेजा? आप बताइए, सिर्फ 300 लोग क्यों? हेलो, खुदा ने हजारों की तादाद नहीं कहा कि लेके आओ। यीशु से कहा बस ये 300 लोग काफी हैं, 300 लोग लेके चढ़ाई कर ले। वजह क्या है? खुदा बताना चाह रहा था कि इंसानों में नहीं भरोसा करना, कौमों पे भरोसा नहीं करना, फौजों में नहीं, रथों में नहीं, मुझ पे भरोसा करो, और सिर्फ 300 लोग लेके निकलो। और यीशु को खुदा ये जदूर को खुदा ने फतह बख्शी। और फिर एक और लेडी दबूरा जिसका नाम है, कज़ात की किताब में उसका जिक्र है, एक नबिया थी, प्रोफेटिस, काजिया थी, इंसाफ करती थी, इस्राएल की कायद थी, इंतजामी और फौजी क़यादत की माहिर थी। और खुदा ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा फतह देने के लिए, बहुत बड़े दुश्मन से, याबीन से, कनान के बादशाह से मैं तुझे रहाई देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। दबूरा ने अपने साथ बर्फ को लिया जो सिबेसलार था, और बर्फ को लेकर आगे बढ़ी जंग करने के लिए। और फिर क्या हुआ? खुदा ने दबूरा की रहनुमाई में बर्फ के वसीला से एक बहुत बड़े मुल्क कनान के बादशाह याबीन को शिकस्त दे दी। बोले हालेलुया। एक औरत याद के मसीह में ना औरत से बढ़ गया, ना औरत से बढ़ गया। हाँ, मियां बीवी के ताल्लुक में तो ठीक है, खुदा ने दर्जाबंदी की है, लेकिन मसीह में हम सब बराबर हैं। एक औरत को खुदा ने इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ याबीन बल्कि सीसरा जो उनका सिबेसलार था, उसको भी धर्म से मार दिया। कि ये सब कुछ दबूरा की रहनुमाई में हुआ। बोले हालेलुया। और जब फतह पाई तो उसको फतह से बढ़ के गलबा से हुआ। दुनिया के जो फातेह हैं उनसे बढ़ के हुई, मोर देन कंकरर्स हुई। बोले हालेलुया। जो खुदा ने फतह बख्शी, फतह से बढ़कर गलबा दिया। दाऊद का नाम किसने नहीं सुना? जिसने नहीं सुना दाऊद का नाम हाथ खड़ा करें। दाऊद यसी का बेटा, इस्राएल का पावरफुल बादशाह, बहुत जबरदस्त बादशाह, 40 साल उसने सल्तनत की। लेकिन ये तो आगे की बातें हैं, जब आम शख्स था तब की बात करूंगा। मैंने जदूर के बारे में भी क्या कहा? एक आम आदमी था। अब दाऊद एक आम आदमी, बल्कि एक जवान लड़का, यंग, खुदा ने उसे जाति जूनियत को ढेर करने के लिए इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया। अब ये है फातेह, एक तरफ दो कॉमन शख्स, एक दराज तक का ध्यो, और दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का दाऊद। खुदा ने दाऊद के वसीला
से जाति जीवियत का सफाया कर दिया। बोले हालेलुया की आवाज आनी चाहिए, हालेलुया। और उसने फिलासफ के साथ अपने फिलासफ को घुमाते हुए एक ही पत्थर के साथ उसका जो है धड़क दफ्ता कर दिया और वो पसवा हो गया, मर गया, गिर गया। और दाऊद भागा, फिर आगे भाग के आया, उसने उसी की तलवार खींची, उसी की तलवार से उसका सर तन से जुदा किया। और ये है फतह से बढ़कर एक आम शख्स, एक लड़का, दूसरी तरफ देव का कुछ शख्स, पूरा मुल्क जो इसराइल के खिलाफ था उसके साथ था। दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल किया। जाति जुलियत की जो तलवार है, एक लंबी तलवार की और खास तलवार थी। एक 10 फुट का 11 फुट का बंदा, उसके हाथ में 2 फुट की तलवार तो नहीं होगी, खसूसी तलवार उसकी बनी हुई थी। और जाति जुलियत को फतह करने के बाद ये तलवार जो है हैकल में जमा करा दी गई अबीमेलेक काहिन के पास। अबीमेलेक काहिन को ये तलवार दे दी गई। फिर एक बार दाऊद गया अबीमेलेक के पास, काहिन के पास, कहता है यार मेरे पास तो तलवार है। कहता है तो सही है, कौन सी? उसने कहा जाति जुलियत की तलवार जिसको तूने शिकस्त दी थी, उसकी तलवार है। उसने कहा वो तो ठीक है। फिर सुनिए, ये तलवार दाऊद के पास तमाम उम्र रही। किस लिए? ये तलवार उसको याद कराती थी कि खुदावंद खाते हैं। ये तलवार उसको याद कराती थी कि ये फतह तूने नहीं पाई, ये तूने नहीं पाई, तूने कुछ नहीं किया, खुदा ने किया, खुदावंद ने जोर बख्शा। जब जितना दिन लड़ता यहोवा और जब कभी नहीं आते, फाते हमें बताता है ये जंग मैंने जीती है। ये तलवार याद कराती थी कि खुदावंद फाते है, और तलवार याद कराती थी कि तुझे फाते से बढ़ के गलबा। बोले हालेलुया। आज हमारे दुश्मन कौन से हैं? थैंक यू। इफ्सियों 6 बाब 11 बार भी आप देखें, हमारे आज के दुश्मन कौन से हैं? 6 बाब 11 बार भी है। ਅਸੀਂ सोचते साड़ा दुश्मन कोई इंसान है। इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। इंसान को शैतान इस्तेमाल करता है और अपनी दुश्मनी इंसान के वसीले से हमसे निकलवाता है। दुश्मन शैतान है। ऐसे अपने रिश्तेदारों को या जो आपको तंग करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको बुरा भला ना करें। ऐसे तो यीशु ने कहा ना, आपको याद है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो, क्योंकि दुश्मन खुद से कुछ आपका निकाले। ये शैतान है जो इंसानों को बहकाता है। असल दुश्मन शैतान है। आइए पढ़ते हैं। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस जमीन दुनिया की तारीकी के हाथों और शरारत की रूहानी कौनों से जो आसमानी मुकामों में है। ये भी हमारा मुकाबला बदरूहों से है, हमारा मुकाबला शैतान से है, हमारा मुकाबला आजमाइशों से है, हमारा मुकाबला गुनाह से है और मौत से है, हमारा मुकाबला बीमारी से है, हमारा मुकाबला हालात से है। लेकिन याद रखें, तमाम हालात में फाते जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आपसे मोहब्बत की। हमारे दुश्मनों में कौन लोग शामिल हैं? आप कहेंगे इंसान, मासी का बेटा, मामू का बेटा, आंटी, नहीं हो गए तो सास, या फिर कोई साड़ा दुश्मन नहीं है। जो किसी को बुराई के लिए उकसाता है वो इब्लीस है। इसलिए आप उससे प्यार किया करें, बहुएं अपनी सास की इज्जत करें, उनको प्यार करें। हाँ हाँ, कभी चलो उम्र की ज्यादा होती है उनकी, और दूसरी बात यह कि उन्होंने खुद भी ऐसे तजर्बा किया होता है, जब वो बहू थी, सास भी कभी बहू थी, है ना। तो उनके साथ भी चूंकि ऐसे हालात गुजरे थे, लिहाजा वो आगे भी ऐसे भी चलना चाहती है। तो फिर कहा करे खुदावंद ऐसा की कसूर है? शैतान है जो उनको उकसाता है। अपनी सास से मोहब्बत करें, नवा बढ़िया ससा बढ़िया खुश हो जाए, नवा ना इज्जत करो, ना प्यार करो। इब्लीस है जो उकसाने वाला, शैतान है जो उकसाने वाला। हमारा दुश्मन इंसान नहीं, शैतान है, आजमाइशें हैं जिनको इब्लीस को इस्तेमाल करता है। और दीगर दुश्मनों में हमारे दुश्मन है मौत, मौत का खौफ, मौत का डर लगा रहता है कि यार बीमारी लग गई है तो मौत में ना चले, मर ना जाऊं, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरी जायदाद किसको मिलेगी, मैंने तो वसीयत भी नहीं की, मैंने तो
मेरे बाद क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। मौत का बड़ा खौफ होता है, मौत का डर, मौत का डर थमता है, उससे कैसे आप बचेंगे। मेरी तो देखिए, अपने हाथ ऊंचे करें और लहराएं। मौत का डर, उससे कैसे बचेंगे। यीशु को याद करें, यीशु को याद करें। यीशु ने मौत पर फतह पाई, तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ जी उठा। जब यीशु मौत में पाते हैं तो उसने आपको भी फतह से भर के दबा दिया है, आप भी मौत में पाते हैं। हालेलुया। और अगर मर भी गए तो फिर क्या, मर भी गए तो भी हम जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। मौत फतह का दुर्मा हो चुकी है। हमें खुदा ने खौफ की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी, इसलिए मत डरे मौत से, किसी चीज से न डरे। रैप्चर हो जाएगा, मौत देखती रह जाएगी, मौत देखती रहेगी, की है तो मरेगी, आसमान में उठा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मौत में फतह बख्शी, वो फिर भी हमें मौत से फतह बख्शे। फिर फ्यूचर का खौफ, ये भी बड़ा मसला होता है। क्या बनेगा, कल क्या होगा। इंडिया पाकिस्तान की जाकर ना हो तो ये सोचते जाए, खुलते ना जाएंगे, क्या होगा। खुदा आपके साथ, खुदा आपका मददगार है। हालेलुया। यीशु पर अपनी फिक्र डालें, गालिब आए। लोगों के कई लोगों का फिक्र होता है, खौफ होता है, इंसानों का। मिलाऊन है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कुल करता है, जो इंसान से डरता है। याद रखें, साल 29-25 लिखा है, इंसान का डर होता है। मत डरे किसी से, आप किसी से कम नहीं है। क्यों नहीं है, आप फाते से बढ़कर है। इंग्लिश में कहिए, आई है, जो बोल सकते हैं इंग्लिश बोले, जो नहीं बोल सकते वो भी कोशिश करें कि आई है मोर देन कॉन्करर्स। मैं फतह करने वालों से बढ़कर हूं। बोले नहीं, मैं फतह करने वालों से बढ़कर हूं। इंसान आपका क्या उगाड़ सकता है। इब्रानियों 13 आए, इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद हमारा मददगार है, मैं खौफ न करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। और ये है फिलिपियों 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत। जो पढ़ सकते हैं स्क्रीन की तरफ देखें, और जो नहीं पढ़ सकते वो मेरे पीछे बोले, कहें मगर उन सब हालतों में, ऊंची बात में, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल। मेरे साथ ऐड कर दे, इंसान तेरा क्या उगाड़ सकता है। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल, मैं नहीं कर रहा, आप अकेले नहीं है, खुदा आपके साथ है। खुदा आपको बरकत दे। आप फाते से बढ़कर है, आपको फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। खुदा